I'm very sorry. Due to call, it was disconnected. So today we are going to discuss. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Now you're audible. Okay. I'm very sorry. Due to a call, it was disconnected. So today we are going to discuss new topic, that is the amendment of the constitution. And before going to the discussion in depth, we are going to introduce the basic philosophy of the constitution and what are the salient feature of the constitution. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक आप लोगों को इंट्रोडक्टरी क्लास में भी, कि भारत के संविधान की विशेषताएं. तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज if we compare this process, amendment process, to the other countries, especially to the Britain, to the America, to the Australia, then we will find that the process is different. And if we take an example of Britain, in Britain, Parliament is supreme, but in India, but in India, Constitution. Constitution. yes, Constitution is supreme. And in Britain, Parliament is supreme and it can do anything. It means it can amend the British Constitution at any level. But in India, supremacy of the Constitution, then Parliament cannot amend all the provisions of the Constitution. It cannot abrogate the entrenched provision without the due process of law, and they cannot destroy the Constitution. Means they can modify, they can vary, they can repeal the provisions which are inconsistent, which are not, which became obsolete due to the change in the time, due to the change in the society, due to change in the um, circumstances. But they cannot abrogate the entrenched provision, they cannot abrogate the fundamental right. What are the basic things which are basic structure, अगर हम कहें तो example, the amendment process, the power of amendment which is given under 368. If Parliament wants to delete this provision, they cannot, because it is a it is a it is a basic structure and it cannot be abrogated. In comparison to Britain Supreme Court, Britain Parliament is supreme. In India, Constitution is supreme. So there is a very big difference between the powers relating to the amendment of the Constitution. थोड़ा सा और कंपेयर कर लेते हैं हम अगर चाहें तो पावर ऑफ अमेंडमेंट को. इन अमेरिका और इन ऑस्ट्रेलिया, there is two stages in the amendment process. कौन कौन सी दो स्टेजेस हैं? इनिशिएशन एंड द रेटिफिकेशन. बट इन इंडिया there are certain amendments, there is no ratification, only the initiation. Means through the simple majority, Parliament may amend the provision. There are certain provision where Parliament may initiate and ratify, but in US and Australia there are two stages in the amendment process, initiation and the ratification. तो ये जो स्लाइट डिफरेंस है, अगर हम देखें थोड़ा सा ब्रिटेन को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, तो वी विल फाइंड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट दैट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ. कैसा है ये संजीव? इट इज अ rigid and flexible both, because everything is dynamic. Means time is dynamic, means time is dynamic and society is dynamic, so law should be dynamic and it should be up to date with the society, otherwise it will be obsolete. क्या हो जाएगा?
अगर ये अप टू डेट नहीं किया जाएगा तो कैसा हो जाएगा सृष्टि? Obsolete. ऑब्सलेट हो जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो अगर हम बात करें कि द नेचर ऑफ द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ मॉडरेट, मीन्स द प्रोसेस इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड द it is a it is neither rigid nor flexible, it is a moderate. And through the process, there are three processes which are given in Indian constitution. By these three process, Indian constitution may be amended. What are the three process? Anyone? What are the three modes by which constitution of India can be amended? Sir, simple majority, Simple. special majority, and special majority ratification by states. Okay. So these are the three mode by which a Indian constitution may be amended. But अगर आपसे कोई जनरली पूछता है कि इन अकॉर्डिंग टू द 368, आफ्टर यूजिंग द पावर अंडर 368, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस इज गिवन? अगर 360 की बात की जाए तो कितने तरीके का मोड दिया गया है? कितने मोड हैं? There is only two modes. First is special majority and second is special majority plus ratification. And the power of parliament to amend the provision by simple majority, that is given in the different parts. Are you getting my point? नेहा, Yes. क्या है कि जो ये आप देखते हैं सिंपल मेजोरिटी, दैट इज नॉट गिवन अंडर द आर्टिकल 368. इट इज गिवन इन द प्रोविजन इटसेल्फ कि ये प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से चेंज होगा. जैसे एग्जांपल आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है संजीव? हाँ जी, what is given in under article 2? Admission or establishment of new states. Admission or establishment of a new state, change of the name, alteration, all these things can be amended by the parliament by the simple majority. It is itself written in section in clause 2. ये वहीं पर दिया गया है, क्यों? Yes, sir. Now there is one more provision, that is a provision relating to the citizenship. How this provision can be amended? कैसे हो सकते हैं amend? गुंजन? By simple majority, sir. By simple majority, that is given in section article 11, means parliament exclusively has power to amend provision relating to the citizenship through the simple majority. Am I right, Subham? Yes, sir. So there are certain articles which may be amended by the simple majority, and there are certain other articles in the constitution which are which we discussed about the entrenched provision, means which affect the federal structure of the country. Federal structure of the constitution means provision which affects the federal structure of the constitution. These provisions known as entrenched provisions, and these provisions only can be amended by the special majority plus ratification. तो ये आपको मोड के बारे में आपको पता चला. इसके साथ ही अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की, तो देयर आर टू मेथड, फॉर्मल मेथड एंड इनफॉर्मल मेथड. ये तो मोड हैं, बट अगर हम एक ब्रॉड लेवल की बात करें कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कैसे अमेंड किया जा सकता है? व्हाट आर द मेथड? फॉर्मल मेथड एंड द informal method. Yes, now first of all we will discuss the informal method. Yes, what are the informal method? कोई जानता है कैसे इनफॉर्मल मेथड के जरिए अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में? एनीवन? Is there any example? Anyone knows about the example? सृष्टि? सर जैसा इंग्लैंड में होता है.
इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में तो फॉर्मल मेथड यूज़ होता है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी चेंज कर दे। लेकिन इनफॉर्मल मेथड का मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि इनफॉर्मल मेथड में बी इन द फॉर्म ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। क्यों सृष्टि? Yes, sir. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से मीनिंग चेंज हो जाता है, क्यों? Yes, sir. नाउ द सेकेंड वर्ड that is a convention, custom or uses. So judicial convention, custom or uses recognized by the court, इसके जरिए भी तो चेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों? Yes, Yes. sir. So there are two way: constitutional convention, through the constitutional convention, and judicial interpretation. Now there is one case law on this point, whether there is any difference between the constitutional convention and the constitutional law. Sanjeev, No idea, sir. is there any difference between the constitutional convention and constitutional law? कोई डिफरेंस है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में? देयर इज वन केस लॉ ऑन दिस पॉइंट एंड सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। क्या केस का नाम है? इन द केस ऑफ स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस कुलदीप सिंह observe that there is no distinction between the distinction between the constitutional law and constitutional convention. When it is established by the court, it will be binding and become part of a constitutional law of the land, and they are enforceable like a same nature. क्या बोला मैंने सृष्टि? So Justice Kuldeep Singh, in the case of Skora versus Union of India 1994, Supreme Court held that there is no distinction between constitutional law and constitutional convention, but when it is only when it is established by the court and it will be binding. और सर लास्ट पॉइंट छूट गया है. It will be binding on the constitutional law of land and it is enforceable like a same nature. तो ये जो तरीका है इनफॉर्मल मेथड का, दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर द फॉर्मल मेथड ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फॉर्मल मेथड of amendment of the constitution is given in Indian constitution under article 368. 368, means through using the 368, applying the 360, any provision of the constitution can be amended. Any provision of constitution can be amended. एक लाइन में कोई इंटरप्रिटेशन दे सकता है इसका? Any provision of the constitution can be amended subject to the basic structure of the constitution. This is the final. एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछता है कि आफ्टर यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 368, any part of the constitution can be amended, any part except the basic structure of the constitution. Is it clear? लेकिन इस बात को समझने से पहले देर आर सर्टेन केस लॉ एंड देर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स. उससे भी पहले वी हैव टू डिस्कस द legislative provision relating to the power and amendment of the constitution. Under what article it is given and what is given under article 368. तो वैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि जो पहला मोड मैंने बताया वो मोड कौन सा है गुंजन? फर्स्ट मोड ऑफ अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट का पहला मोड
हाँ जी बताइए। सिंपल मेजोरिटी सर। सिंपल मेजॉरिटी, तो कोई बता सकता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो सकते हैं? कुछ 2 4 10 बता सकता है अगर कोई, इफ़ एनीवन हैज़ आइडिया अबाउट द प्रोविजंस दैट दीज प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी सो दैट ही कैन राइट इन द मेंस आंसर राइटिंग। कि आपको अगर मन करे कभी कि सिंपल मेजॉरिटी से क्या चेंज किया जा सकता है, यू कैन राइट डाउन ऑन द पेपर। आप सबसे पहला तो आपने देखा कि अल्ट्रेशन बाउंड्री नेम और सेक्शन 2 में देखा, आर्टिकल 2 में देखा। सेकंड आपने देखा सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। नाउ इसके अलावा अगर किसी को कुछ पता है तो एनीवन प्लीज। हाँ जी, कोई है ऐसा जिसको पता है? प्लीज नोट डाउन द आर्टिकल्स। एक ब्रीफ में आर्टिकल्स नोट कर लेंगे। These articles can be amended. There are certain articles which can be amended by the simple majority. एक लिस्ट लिख लीजिए ताकि आप जाकर के आर्टिकल देख सकें। वहाँ प्रोविज़न दिया गया है, हमने प्रोविज़न डिस्कस भी किए हैं। आप लोगों को याद आएगा लेकिन थोड़ा लेट याद आएगा, अभी नहीं आएगा। ओके, देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स which may be amended by the which shall be amended by the simple majority. अनुज क्या लिखा? Yes, sir. क्या लिखा आपने? सर सिंपल मेजोरिटी के बारे में लिखा है, आप आर्टिकल बोलने वाले हैं। हाँ जी, अभी हेडिंग क्या डाला आपने? देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स विच शैल बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। आर्टिकल 2, शेड्यूल 1 एंड 4 क्या दिया गया है शेड्यूल 1 एंड 4 में? बहुत तेज़ी से आप लोग बताएंगे। अब आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, आप समझ लीजिए। शेड्यूल 1, व्हाट इज रिटन इन शेड्यूल 1? इतना Sir, टाइम, हाँ इतना टाइम नहीं लगता है आंसर देने में, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। शेड्यूल 1 में क्या दिया गया है? State and union स्टेट territories. एंड यूनियन टेरिटरीज मीन्स कोई भी नाम जोड़ना है घटाना है शेड्यूल 1 में, दैट विल बी डन बाय द सिंपल मेजॉरिटी। नाउ द सेकेंड, शेड्यूल 4, व्हाट इज शेड्यूल? allocation of seats to Rajya Sabha. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एकदम आपकी टिप पर होना चाहिए, आप समझ लीजिए, क्योंकि इतना डिस्कस हो चुका है, ये सारी चीज़ें भूलना नहीं है आपको। नाउ आर्टिकल 11, व्हाट इज आर्टिकल 11? Parliament to regulate the right of citizenship by law. Yes, it means by the simple majority parliament may regulate the rights of the citizenship. Okay, now third is 73 clause 2. What is the 73 clause 2? हाँ जी, प्रोविजंस नोट कर लेंगे और आप देखेंगे उन्हें जा करके, क्योंकि अभी ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। प्लीज़, आर्टिकल 73 क्लॉज 2, 59 क्लॉज 3 कॉमा दे करके नोट करेंगे, 75 क्लॉज 6 कॉमा 97, 125 क्लॉज 2, 148 क्लॉज 3, 158 क्लॉज 3, 22 to 221 क्लॉज 2। नीचे नोट कर लेंगे, सेकेंड शेड्यूल सैलरीज एंड द अलाउंसेस ऑफ द सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। सर आपने 158 क्लॉज 3 के बाद क्या बताया? 221 क्लॉज सर 2, एक बार शुरू से रिपीट कर दीजिए, 73 क्लॉज 2, 59 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 6, 97, 125 क्लॉज 2, 148 क्लॉज 3, 158 क्लॉज 3, 221 क्लॉज 2। नीचे उसके लिख लेंगे सेकेंड शेड्यूल सैलरीज एंड अलाउंसेस। किसके सैलरीज एंड अलाउंसेस दिए गए वैसे सेकेंड शेड्यूल में? एनीवन प्लीज? हाँ जी, किसके सैलरी एंड अलाउंसेस दिए गए हैं शेड्यूल 2 में? अनुज, अनुज, am I audible? यस सर। ये आप लोग अगर क्लास लेने के बाद अगर भूल जाते हैं या आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, पता है? कितना भी अच्छा मैं आपको पढ़ा दूं, बताइए। और आप लोग बेयरक लेकर बैठे ही नहीं है, इसका मतलब इतना टाइम लगता है आप लोगों को देखकर भी बताने में। सर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर वगैरह के इसमें जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह हैं, तो
बाय सिंपल मेजोरिटी दीज प्रोविजन कैन बी अमेंडेड। अनुज, आप इसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई मतलब कैसे क्या कर रहे हैं बताइए, कैसे आप सेकंड शेड्यूल नहीं बता पा रहे हैं? वहाँ तो गलत हो जाएगा फिर आंसर आपका। बहुत सिंपल सा है ये तो। मैं टिप पे आपको बता सकता हूँ, ऐसे गिनती कर दूंगा ना तो 7-8 शेड्यूल तक पहुँच जाऊँगा बताते हुए आपको। और मैं एक बार ये रिवाइज भी करा चुका हूँ, पता है सृष्टि? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. एक बार मैं रिवाइज करा चुका हूँ कैसे याद रखना है इसको। 73, 74, क्या मैंने बताया था आपको? क्या है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। मैंने आपको ये भी कहा था कैसे याद करने हैं इनको, कि 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 11th एंड 12th इज इंसर्टेड बाय 73rd एंड 74th। 11th 12th 8 तक तो पहले से ही थे। 9th इतना इंपॉर्टेंट शेड्यूल है कि जिसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। 10th एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है? और फर्स्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ की बात करता है। सेकेंड शेड्यूल जो है वो क्या है? अलाउंसेस की बात करता है, आपके सैलरीज़ की बात करता है। थर्ड शेड्यूल आपकी ओथ एंड अफर्मेशन की बात कर। आपकी टिप पर याद होने चाहिए, पता है? अब मास्टर नहीं हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के आप। आपको ऐसा लगने लगा होगा कि नहीं नहीं हम बहुत कुछ जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते। अगर सामने वाला पूछेगा और आप बता नहीं पाएंगे तो आप कुछ नहीं जानते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी नेहा, यस। ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम आप लोग रिवाइज करेंगे। ये सब कुछ रोज पढ़ रहे हैं, आप रिवाइज नहीं। अभी मैं फिर से कुछ चीज़ें पूछूंगा आपको, फिर से देखना पड़ेगा मुझे। अब मैं रिवाइज तो नहीं करा सकता ना कि वर्ड टू वर्ड प्रोविज़न बताऊं कि नहीं नहीं अब 59 क्लॉज 3 में क्या दिया गया, 75 में क्या दिया गया। एक आपका आइडिया होना चाहिए। आई थिंक 125 क्लॉज 125 में क्या हो सकता है प्लीज़ थोड़ा सा नहीं भी देख करके बता सकते हैं आप, पता है? Salaries of Supreme Court judges. सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये कैसे बता दिया आपने? क्योंकि 124 में क्या दिया गया है? Establishment of Supreme Court. तो 124 में एस्टैब्लिशमेंट एंड अपॉइंटमेंट भी तो वहीं पर दिया हुआ है। Yes, sir. दोनों ही चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता है? ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे करके 148 में क्या दिया गया? एनीवन प्लीज? Comptroller and Auditor General. यस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उसकी सैलरी के बारे में बात की गई होगी। मैं सेकेंड शेड्यूल इसीलिए बता रहा हूँ मीन्स कि सेकेंड शेड्यूल सैलरीड एंड अलाउंसेस से रिलेटेड प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी के जरिए चेंज किए जा सकते हैं। कुछ डिग्नेटरीज हैं जिनके सैलरी एंड अलाउंसेस कहा गया है कि पार्लियामेंट जिनके जिनके डिसाइड करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अनुज, संजीव? Yes, sir. जिन लोगों की सैलरी पार्लियामेंट में डिटरमिन, उन सारे लोगों की सैलरी यहाँ पर दी गई है। प्लीज़ नज़र डालेंगे आप अगर, ठीक है? और वो पार्लियामेंट थ्रू सिंपल मेजोरिटी डिटरमिन करेगी। इज इट क्लियर? कुछ व्यू क्लियर हुआ आप लोगों का? Yes, sir. आपको समझ आया कि नहीं आया ये चीज़ कि कैसे आपको याद रखना है? नाउ द थर्ड थिंग, आर्टिकल 133 क्लॉज 3। जब हम अपील की बात कर रहे थे तो आपको याद है एक बार कि सिंगल जज जो होगा हाई कोर्ट का, उसकी अपील नहीं होगी, एसएलपी नहीं होगी। याद है? सिविल अपील नहीं होगी। क्यों? हाँ सर, हम Yes, सिविल sir. प्रोसीजर कोड में पढ़े थे। वैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी बात की थी कि अगर कोई सिंगल जज कोई डिसीजन देता है तो वो क्या नहीं होगा, उसका सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील नहीं होगी ना। क्यों? यस सर। यही तो लिखा हुआ है ना, अपील शैल बी प्रेफर्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डजंट मीन द जज ऑफ द सिंगल जज। हाई कोर्ट डजंट मीन द अपील फ्रॉम द सिंगल जज। अनुज, थोड़ा एक्टिव Sir, इंट्रा कोर्ट अपील फील, हो सकती है हाँ उसकी. एक्टिव फील करिए। पता है जितना दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे उतना अच्छा समझ में आएगा लॉ। अगर आप बैठे रहेंगे सुस्त तो सुस्त रहेंगे फिर आप। और अगर आप क्रॉस अगर नहीं कर पा रहे हैं अगर आप बाउंड्री, तो समझिए बहुत मुश्किल है फिर। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, 3 दिन पहले के लेक्चर को बता रहा हूँ आपको कि क्या डिस्कस किया था। वहाँ पर दिया था मैंने, सीपीसी में बात की थी। तो इसके अलावा 135 नोट कर लीजिए प्लीज़, आर्टिकल्स नोट कर लीजिए। 133 क्लॉज 3, 135, 137, 171 क्लॉज 2,
170 क्लॉज 3, तो और उसके बाद 343 क्लॉज 3 एंड 348। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, Yes, sir, please. 133 क्लॉज 3, 135, 137, 171 क्लॉज 2, 170 क्लॉज 3, 343 क्लॉज 3 एंड 348, शेड्यूल 5 एंड 6। आई थिंक यू ऑल हैव रिटन दिस, प्लीज। अनुज, लिख लिया ना आपने? यस सर। अच्छा चलिए, एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे अनुज कह रहे थे ना कि सर ये वाला प्रोविज़न आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे। देखिए कुछ प्रोविजंस मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ। 343 एंड 348, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। व्हाट इज द 343? एनीवन प्लीज? देखिए बहुत इतना ऑफिशियल important, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। हाँ जी हाँ जी, इस प्रोविजन में इतना इंपॉर्टेंट है कि प्री में जरूर आएगा। 343 एंड 348, एक है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दूसरा है क्या, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कौन सा है नैन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? सर 343। व्हाट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? सर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों है सर। चलिए इसको आप लोग प्लीज हाईलाइट कर लेंगे और इसको पढ़ेंगे अपने आप, ठीक है? अनुज, एक बेयर प्रोविजन है सिर्फ ये, और इसको आपको पढ़ना है और देखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगी। नाउ व्हाट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? English. कहाँ पर दिया गया ये? 348। 348, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे और इसको लिख लीजिए कि टू बी स्टडीड बाय ओन। ये दोनों आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? एंड शेड्यूल 5 एंड 6, इनमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है बाय सिंपल मेजॉरिटी। हाँ प्लीज, शेड्यूल 5 में क्या दिया गया है? Administration of scheduled area and scheduled tribe. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एंड 6 इज Administration of scheduled area and scheduled tribe in Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. कुछ सम पर्टिकुलर स्टेट्स, कुछ पर्टिकुलर कितने स्टेट दिए गए हैं सृष्टि, एक बार प्लीज ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अंडर शेड्यूल 6 हाउ मेनी स्टेट्स आर गिवन। अनुज, उत्तर प्रदेश में जज बनने के लिए अनुज सबसे यही तरीका है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में भी Yes, फायदा, sir. इंटरव्यू में भी तुमको फायदा करेगा सब लोगों को। और इंटरव्यू मेरे जैसा अगर पढ़ा हुआ कोई आदमी लेगा तो जरूर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। वैसे अभी मेरी उम्र नहीं है, बुलाएंगे नहीं, लेकिन अगर मुझसे पूछ देंगे ना अगर कहीं, तो मैं ज़रूर पूछ लूँगा कि अच्छा ये बताइए कि 5 स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट हैं वो जिनको स्पेशल स्टेटस मिली हुई है अंडर शेड्यूल 6? कोई बता सकता है? Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram. असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 ही हैं सृष्टि या 5 हैं? 4 हैं सर। 4 हैं। चलिए नोट कर लीजिए, अगर किसी के पास अगर जानकारी नहीं थी तो नोट कर लीजिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो आपने देखा कि शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, इनमें भी सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किया जा सकता है। चलिए इट्स ओके। तो ये तो आपका रहा कि ये सब प्रोविजंस हैं जहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किया जा सकता है। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन, एंड देयर इज नो नीड टू एक्सरसाइज द पावर अंडर 368। चलिए एक और सिंपल चीज बता देते हैं आपको। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोसेस, सॉरी एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था मैं। 2 तरीके के पावर हैं पार्लियामेंट के पास। कौन कौन से पावर हैं प्लीज, कोई बताएगा मुझे? लॉ बनाने के कौन कौन से पावर हैं? हाँ जी, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए लॉ बना सकता है, और दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पार्लियामेंट कैसे कर सकता है इनैक्टमेंट अनुज? थ्रू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जिसके जरिए वो एक्ट तैयार करता है। ठीक है नयन?
Yes, sir. क्या है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए वो क्या करता है? रूल्स, बाई लॉज, एक्ट, रेगुलेशंस, एनीथिंग. This is ordinary legislative process. Second is that is the constituent power. Through the constituent power, Parliament may amend any provision. Are you getting my point? और ये dispute हुआ था कि whether the power of amendment under C68, if any provision is amended, whether it is a constituent power or it is a legislative, ordinary legislative power. ये बात हुई थी, याद है आप लोगों को? हाँ जी, ये सुनने को आपको पता चला था या नहीं चला था? आप लोग पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि क्या है ये? Yes. ये जो पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और इट इज ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर. कैसी पावर है ये? और वेदर if it is a ordinary legislative power, then power of judicial review can be invoked. नयन, अगर ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के जरिए लॉ बना रहा है, कोई एक्ट बना रहा है, कोई रेगुलेशन ला रहा है, कोई रूल आ रहा है, कोई बाईलॉज बन रहा है, देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 कैन बी टेकन. अनुज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. क्या है मेरा मतलब? हाँ जी बताइए, क्या कहना चाहता हूँ मैं? इस ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात करके मैं पार्लियामेंट के क्या बताना चाहता हूँ आपको? आप पार्लियामेंट जैसे अमेंडमेंट करती है, उसके पावर को आप सर दो डिवाइड किए हैं आप. उसमें प्लस में आप कह रहे हैं कि जैसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसमें रूल एंड रेगुलेशन को जब अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा, अगर पावर लगाकर मतलब अपनी शक्ति लगाकर किसी चीज को बदल रही है. और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जब बता रहे हैं जैसे 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दिया है, उसके आधार पर बता रहे हैं सर. चलिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं. आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ मीन्स एनी एक्ट, bylaws, ordinance, rules, regulations, any type of notifications. If it is inconsistent with the fundamental rights, then power of judicial review can be taken. Means judicial review can be invoked if it is inconsistent. तो ये जो law includes है, तो ये किसकी बात कर रहा है? The law which is made by ordinary legislative process. संजीव? Yes, sir. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई एक क्लॉज जोड़ करके, मैं भी बात करूंगा और फिर क्लियर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट टेक जुडिशियल रिव्यू ऑन द अमेंडमेंट्स एंड अमेंडमेंट डज नॉट इंक्लूड्स द लॉ. क्या है? लॉ डज नॉट इंक्लूड्स द अमेंडमेंट. नयन, हाँ सर. क्या है? क्या है कि लॉ इंक्लूड्स द बाईलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस, and it is made by parliament by using his ordinary legislative process. So judicial review can be invoked on these things, but law does not include the amendments because it is made by the constituent power of the parliament using 368. Judicial review cannot be invoked. तो ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई सस्ती. Yes, sir. अगर इस बात को मान लिया जाए, जो ये बात की गई, तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई. सर इसीलिए तो क्या कहते हैं आर्टिकल 13 के तहत क्लास 4 जोड़ा ही गया है ना. अनुज, इसकी वजह से नहीं जोड़ा गया. जितना मैं कह रहा हूँ इसीलिए जुड़ा है. बस मतलब जो मैं कह रहा हूँ ये वहाँ जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. लेकिन उसके बाद इसको फिर क्या किया गया? इनवैलिडेट किया गया, क्योंकि power of judicial review is a basic structure of the constitution, and through the amendment or through the any process it cannot be ousted, it cannot be taken away from the Supreme Court. Are you getting my point? It is a basic structure. चलिए वापस आ जाते हैं आपको समझाने के लिए. तो आपने देखा कि पार्लियामेंट को बताया गया कि दो तरीके के प्रोसेस
के जरिए लॉ बना सकती है, दैट इज अ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। नाउ रीड आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 एक बार रीड करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि अमेंडमेंट कितना कर सकते हैं, अमेंडमेंट के ऊपर जुडिशल रिव्यू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, एंड उसके साथ ही वेदर अमेंडमेंट इज लॉ और नॉट। 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, कम ऑन, कम टू द पॉइंट। आर्टिकल 368, व्हाट आर्टिकल 368 सेज? रीड द मार्जिनल हेडिंग ऑफ आर्टिकल 368। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। हाँ जी, मैं सर हाँ जी, हाँ जी। Article 368, power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefore. Okay, okay, please Clause 1. see the footnote. When this is substituted or a change inserted, Substituted by the Constitution, 24th Amendment Act 1971. please note down inside on one side of the paper. To the 24th Amendment 1971, power is inserted. इससे पहले लिखा था प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नयन, Yes, sir. एम आई करेक्ट? देख लीजिएगा, अगर मैं गलत भी कुछ बोल दूं तो आप लोग प्लीज नोटिफाई करते रहना, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूं ना कि क्या लिखा है वहां। हाँ, क्या वर्ड जोड़ा गया वहां पर? Power. पावर। Power. पहले क्या था वहां पर? ओनली In the प्रोसीजर। place of procedure. Yes, only procedure था, procedure for the amendment of the constitution. Now the power is inserted. Power is inserted and substituted by 24th Amendment 1971. Please highlight करके note down कर लेंगे. Through which amendment the word power is inserted in marginal notes of 368. Now read the provision. Clause 1. Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article. Okay, this clause is also substituted, I think. Please एक बार देखेंगे. This clause is also substituted. Inserted, sir. This clause is inserted, renumbered हुई थी, हाँ जी. तो कब ये insert हुई ये clause? So same 24th Amendment 1971. 24th अमेंडमेंट के जरिए क्लॉज इंसर्ट हुई, और इस इंसर्ट करने के साथ साथ दे हैव इंसर्टेड देयर लॉट ऑफ थिंग्स, कि सिर्फ अमेंड नहीं कर सकते हैं, इट में रिपील, इट में वेरियस, इट में क्रिएट वेरिएशंस, मॉडिफिकेशन, देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन इंसर्टेड। क्या क्या इंसर्ट हुआ अनुज? हाँ जी, यस सर। क्या क्या इंसर्ट हुआ? वेरिएशन बताया गया सर, उसके बाद रिपील बताया गया, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग द प्रोसीजर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से साहब क्वेश्चन बनता है, जल्दबाजी मत करिए आप लोग। यहाँ से लिख के आता है ऐसे कि अंडर 368, अंडर आफ्टर यूजिंग द पावर 368, पार्लियामेंट में रिपील, मॉडिफाई, अल्टर, चेंज, वर्ड देख लीजिए, अदरवाइज वहाँ कुछ भी टिक करके चले आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शुभम, यस सर। आप सारे वर्ड्स देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, प्लीज रीड द वर्ड। So there is a addition, variation, or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article. प्लीज इसको एक बार आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गलतियां नहीं करिएगा प्लीज, ठीक है? पावर to amend the constitution by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution. amend करने के तरीके हैं ये, by addition कुछ जोड़ दिया जाए, by variation को डिफर कर दिया जाए, और repeal उसको डिलीट कर दिया जाए. This is called as amendment. Is it clear? Yes. गुंजन है क्लास में या नहीं है? जी सर। हमें लगता है कि गुंजन मूड भाप लेती हो क्या, कि मतलब आज सर मतलब सही मूड में नहीं लग रहे हैं, तो नहीं बोलना है एकदम। सोनाली, अच्छा सोनाली क्लास में नहीं है शायद, ओके। बाकी लोग क्लास में हैं और उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, प्लीज़ सेंड मी टेक्स्ट। हैं आप लोग या नहीं हैं, पहली चीज़ तो यही क्लियर हो जाए। हाँ जी,
ओके, नाउ प्लीज, कैसे अमेंडमेंट हो सकता है? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. नाउ द थिंग इज, क्लॉज 2. Clause 2. An amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of the total membership of that house, and by a majority of not less than two-thirds of the members of the house present and voting, ओके, it shall be. प्लीज़ यहाँ पर एक बार रुक जाएंगे. सबसे पहली चीज़ है कि इनिशिएशन ऑफ द बिल ऑफ अमेंडमेंट, इन विच हाउस बिल रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इनिशिएटेड, या फिर इन विच हाउस बिल ऑफ अमेंडमेंट में बी इनिशिएटेड. कहाँ किया जा सकता है इनिशिएट? Either house, sir. In either house of the parliament. It means a bill relating to the amendment of the constitution may be initiated in the either house of the parliament. But money bill लोक सभा में, Only in Lok Sabha. only in the Lok Sabha. And a financial bill In both houses, sir. no, in Lok Sabha only. फाइनेंशियल बिल भी तो लोक सभा में ही जाएगा. Okay. हाँ जी. तो यहाँ पर आपने देखा कि इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अब इसके साथ ही अगर हम बात करें फॉर पर्पज ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, and by majority of not less than two-thirds of the members of the house present and voting. I think it is similar to the नेशनल इमरजेंसी वगैरह जो हमने पढ़ा था वैसे. yes, it is similar to the national emergency, approval of the national emergency. एक बार प्लीज बताएंगे क्या है इसका समीकरण, क्या है, क्या इक्वेशन है यहाँ? हाँ जी, that bill must be passed in each house of the parliament, और कैसे मेजोरिटी होनी चाहिए? मेजोरिटी ऑफ Total membership. total membership of the house, and by majority of not less than two-thirds of the members present and the voting. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं इसलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए तो बहुत अच्छा है कि अमेंडमेंट में स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है. व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी मीन्स the majority of the total membership of the house plus majority of the members of the house plus house present and the voting, two-thirds members of the present and voting. Is that clear? हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास किया जाएगा. करेक्ट, इट्स ओके. नाउ इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट who shall give his assent. Now there is one more thing that is very important, that constitutional bill shall not be returned for the reconsideration of the house. क्या नहीं किया जाएगा? Bill relating to the amendment of the constitution shall be presented to the president of India after the passing of the both houses of parliament, and that shall means president who shall give his assent to the bill. ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है. प्रेसिडेंट नॉट में, यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट टू द बिल. हाँ जी. नो रिकंसिडरेशन इज देयर. संजीव, Yes, sir. once bill is passed by the both houses of parliament with requisite majority, that bill shall be presented before the president, and president shall give assent to that bill, may not send back to the reconsideration. बैक नहीं कर सकता है. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो गया तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ेगी. इट इज मैंडेटरी. और इसके साथ ही दिस इज इंसर्टेड बाय सम अमेंडमेंट. प्लीज देखिएगा किस अमेंडमेंट के जरिए ये मैंडेटरी किया गया. 24th. हाँ जी, ये 24th अमेंडमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों?
गुंजन, 1971. इट इज़ वेरी यस इंपॉर्टेंट, सर, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वॉज चैलेंज इन विच ये केस, इट इज़ चैलेंज इन विच केस, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। यस सर, गोलकनाथ के बाद ही यस ये सब पूरा यस चेंज किया यस गया यस, था, क्योंकि करेक्ट करेक्ट गोलकनाथ ने ही बोला था कि करेक्ट करेक्ट, प्रोसीजर है ये। हाँ जी हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो क्या है ये 24th अमेंडमेंट वॉज चैलेंज इन द केशवानंद भारती, ओके। तो वैसे वैलिड भी करार दिया था इसको कि ये सब सही है, कुछ गलत नहीं किया है 24th अमेंडमेंट के जरिए, बिकॉज द डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय द गोलकनाथ वॉज सेटल्ड बाय द 24th अमेंडमेंट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, व्हाट आर द प्रोविजंस। यहाँ पर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, दीज आर द इंट्रेंस्ड प्रोविजन। दिस क्या कहते हैं इन प्रोविजंस को, क्या कहते हैं इनको, बताइए। इन द प्रोविजो द A B C D E, these provisions are entrenched provision and they shall be amended only with the special majority plus ratification। संजीव, जी सर। क्या है ये एंट्रेंस प्रोविजन, क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएम एंट्रेंस में आया था कि विच इज़ द एंट्रेंस प्रोविजन, हमें मतलब ही नहीं पता था उस समय एंट्रेंस का मतलब क्या होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। क्या था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएम एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, लेकिन दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एंट्रेंस्ड, क्योंकि एकदम नया वर्ड था। अनुज, इससे पहले सुना था ये वर्ड या नहीं सुना था? नहीं सुने थे सर। हाँ, वो मुझे पता है, अब एलएलबी करने के बाद भी नहीं सुन पाता है कोई, क्योंकि वो यहाँ नहीं दिया गया है ना, छोटी मोटी किताब में ये वर्ड मिलता भी नहीं है, पता है आपको शुभम? नयन, आपके कॉलेज में शायद बताया गया हो, जिन लोगों के एनएलयूज़ हैं वहाँ तो बताया गया होगा शायद ये वर्ड, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं तो ज़रूर ये अपनी इंग्लिश में वो वर्ड ज़रूर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्यों? हाँ सर, एंट्रेंस प्रोविजन। इसका मतलब किसी को पता था इससे पहले या नहीं? मैं सृष्टि, एम आई ऑडिबल? नयन, सॉरी नेहा, No, sir. इट्स ओके। एंट्रेंस्ड प्रोविजन का मतलब है कि ऐसे सीरियस प्रोविजन विच ओनली कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन, इनको एंट्रेंस्ड प्रोविजन कहते हैं। और उसके साथ ही एक और कंडीशन है, दिस प्रोविजन अफेक्ट्स द फेडरल सिस्टम, जो फेडरल सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम इंट्रेंस्ड प्रोविजन यहां पर मानते हैं। एंड दीज आर गिवन अंडर द आर्टिकल 368 प्रोविजो ए बी सी डी ई ई तक। एक बार रीड करेंगे कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि फेडरल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और एंट्रेंस प्रोविजन है, प्लीज एनीवन? Provided that if such amendment seeks to make any change in clause A, Article 54, Article 55, Article 73, प्लीज प्लीज Article प्लीज प्लीज 160. प्लीज 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 नेहा, थोड़ा सा नजर डाल लीजिए इसके ऊपर। 54 में क्या दिया गया है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द, सॉरी नॉट मैनर, कॉल 54 में क्या दिया गया है? So election of इलेक्शन president. ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यस। तो ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अगर गड़बड़ हो गया कहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर क्यों? बहुत मुश्किल चीज़ है ये फेडरल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा कि कितने लोग कहाँ वोट, कितना वोट होगा, कैसे होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कब इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा, तो ये फेडरल सिस्टम को अफेक्ट करता है। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, 73 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 162, 241, 279A टैक्सिंग स्टैट्यूट। 279A में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है 279 में? जीएसटी काउंसिल सर। GST. आई थिंक दिस प्रोविजन इज अमेंडेड। जीएसटी काउंसिल तो पहले नहीं था, क्यों? Sir, 2016 में. 279A क्या दिया गया है 279A में? हाँ जी, सर जीएसटी काउंसिल है सर। 279, कल ही हमने डिस्कस किया था. लेकिन 279 तो था नहीं। कल ही आपने बताया था। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, यस यस, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थ्रू 6
फुट नोट लगा हुआ है, एक बार प्लीज। सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट, यस, जीएसटी के बाद जोड़ा गया है प्रोविजन ये। इट मीन्स 162, 241 और 279A, 279A को जोड़ा गया है 101st अमेंडमेंट जीएसटी के जरिए। इज इट क्लियर? नहीं, वही तो मैंने Yes. सोचा कि ये कैसे आ सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन के समय का प्रोविजन अगर है तो वहाँ पर तो था ही नहीं है 279। तो ये ऐसे प्रोविजंस हैं चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 1, पार्ट 11। तो ये कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कि एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल, representation of states in a parliament and the provisions of this article means 368 itself entrance provision। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी एक क्वेश्चन बनता है ना तो वहाँ पर लिखा रहेगा विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट अ एंट्रेंस प्रोविजन गिवन अंडर 368। तो आप लोगों को ध्यान रहे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, चैप्टर 4, चैप्टर 5 डीपीएसपी है, उसके बाद यूनियन है, इसके बाद पार्ट 5, चैप्टर 5, पार्ट 6, चैप्टर 1, पार्ट 11। इनको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है गुंजन? लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा एक। नयन, देखिए पहली बार में मेंस अगर आप लोग लिखना चाहते हैं ना तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना बारीकी से आप लोग प्लीज़ उसको लिख लीजिए वहाँ। अगर अभी नहीं मन कर रहा है तो लिख दीजिए साइड में कि ये मुझे लिखना है कल। इज इट क्लियर? एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू 368, 368 अपने आप में ही ये फंडामेंटल ये फेडरल स्ट्रक्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो ये भी एंट्रेंस प्रोविजन में गिनती है। तो नीचे प्लीज रीड करेंगे, द अमेंडमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट बाय रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट passed by those legislature before the bill making provision for such amendment is presented to the president first. It means if bill is introduced for the amendment in the entrance provision, then that bill must be passed by the both houses of parliament plus ratification। and ratification क्या है? half of the states consent चाहिए ratification में, then this provision can be amended। is it clear संजीव? यस सर। ओके, तो इसके अलावा और तो कुछ है नहीं इसमें ना। हो गया अमेंडमेंट स्पेशल मेजॉरिटी से भी और स्पेशल मेजॉरिटी पर रेटिफिकेशन से भी हो गया। अब बात आती है कि वेदर, अब क्वेश्चन आपका है क्लॉज 3, 4 एंड 5। तो प्लीज़ एक बार नज़र डालिएगा फुट नोट पे 3, 4, 5 ऐड कब हुए हैं? थर्ड तो अब 24th अमेंडमेंट ही है, और जो 4th दिया है उसके बारे में बताया, इंसर्टेड बाय द 4th एंड 5th, हाँ जी, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके प्लीज़ एक बार प्लीज़ नेहा 8 फुट नोट 8 देखेंगे। एंड क्लॉज 3 इज इंसर्टेड बाय द 24th अमेंडमेंट, करेक्ट? यस सर। 24th अमेंडमेंट के जरिए क्लॉज 3 को जोड़ा गया। एंड 4 एंड 5 इज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। एंड इसके नीचे ही आप देखेंगे फुट नोट 9। एक बार फुट नोट 9 रीड कर देंगे आप संजीव? फुट नोट 9 रीड करेंगे। सर मेरी बैरक में 7 में दिया है, बट उसमें लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स AIR 1980 SC 1789। ओके, इट मीन्स दिस प्रोविजंस कि 4 एंड 5 इज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। yes, 42nd amendment act 1976 and it was declared invalid by the Minerva Mills। इनको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के जरिए और इनको मिनर्वा मिल्स में डिक्लेयर कर दिया गया इनवैलिड। तो अब क्या 4, 5 का कोई इफेक्ट है? अभी कोई इफेक्ट है इनका? पढ़ने की जरूरत है क्या? नो सर। No need to discuss these provisions 4 and 5 because this is made unconstitutional in Minerva Mills। तो वापस आ जाते हैं एक क्वेश्चन लेकर के आपके साथ। जब हम आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे तो याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वेदर अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 इज
लॉ अंडर आर्टिकल 13 और नॉट? डिस्कस किया था नहीं किया था संजीव? यस सर। सर मेरा एक डाउट था सर, हाँ थोड़ा जी, बताइए चलेगा? बताइए बताइए। सर ये जिसमें वन हाफ ऑफ द स्टेट्स लिखा हुआ है सर, तो हाँ, इसमें क्या यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड होंगी या केवल स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए? रेटिफिकेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है? और सर लिखा है द अमेंडमेंट शैल आल्सो रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स। लेजिस्लेचर ऑफ द वन ऑफ, तो लेजिस्लेचर हैं क्या यूनियन टेरिटरी में? अगर हैं तो ठीक है, जोड़ लीजिए। सर दिल्ली पौंडीचेरी में है सर। जोड़ लीजिए फिर, अगर लिखा हुआ है ओके लेजिस्लेचर सर। है अगर, तो जोड़ लीजिए। अगर एक्सेप्शन नहीं दिया गया है कहीं कि स्टेट डज नॉट इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी, तो हटाएंगे तो तभी ना जब कहीं लिखा होगा। ठीक है, तो अगर लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट इंक्लूड द यूनियन, स्टेट लेजिस्लेचर है दिल्ली में, पौंडीचेरी में, जोड़ लीजिए। हाँ जी। नाउ द ओके सर, क्वेश्चन, ऑलराइट। the question is whether the word amendment means any amendment made under article 368, whether it is law and whether it is law under article 13, and if it is law under article 13, whether power of judicial review can be invoked over the amendment or not. Anuj, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? यस सर। कि अगर अमेंडमेंट किया गया है 368 के पावर को इस्तेमाल करके, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करके, और वो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेदर दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो लॉ अंडर आर्टिकल 13, जो लिखा हुआ है वहां लॉ मीन्स रूल्स रेगुलेशन बाइज लॉज नोटिफिकेशंस, तो क्या ये लॉ है? और अगर ये लॉ है तो वेदर सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू टेक जुडिशियल रिव्यू ओवर दैट लॉ इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट? बहुत डिफिकल्ट हो गया ये क्वेश्चन फिर अब, क्यों नयन? हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ। क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13 एक बार प्लीज देखेंगे। क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13। यस सर। हाँ जी। In this article, unless the context otherwise requires, clause A, law includes नो नो नो, any सॉरी, ordinance. क्लॉज 4, Oh, क्लॉज 4 ऑफ sir, क्लॉज 4, A or must. हाँ. Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. ओके, इट इज क्लियर गुंजन? यस सर। आर्टिकल Yes, sir. 13, आर्टिकल 13 will not apply over the amendment made under 368, Yes, sir. but when it is amended, when it is inserted, कब कहा गया ये? 24th अमेंडमेंट 1971 में। 24th अमेंडमेंट में गोलकनाथ की सब बातों को झुठला दिया गया, और 24th अमेंडमेंट में कहा गया, देखिए जो हम बताते, अब सुनिए। अभी आप लोग कह रहे थे ना कि वहां पावर नहीं दिया गया है, तो आई एम एडिंग द पावर। सेकेंड, you are saying that the word law does not include amendment. I am writing in the article 13 clause 4 through the 24th amendment कि there shall be no effect on the amendment. क्या हुआ अनुज? अगर जजमेंट के जरिए आप ये कह रहे थे अभी तक कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के जरिए इस्तेमाल हुआ है तो अमेंडमेंट तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा, या अप्लाई, या लॉ इंक्लूड्स द अमेंडमेंट, तो हम साफ कह रहे हैं आपसे, अब मान जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट को साफ, आपने कहा था ना कि ये रिटन नहीं है तो हम इंटरप्रिटेशन कर देंगे, तो उन्होंने कहा रुकिए हम अमेंडमेंट करते हैं ना। 24th अमेंडमेंट करके 13 क्लॉज 4 में जोड़ा कि देखिए आर्टिकल 13, नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई ओवर द अमेंडमेंट मेड अंडर 368। साफ मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट को इंटरटेन करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू ना इंटरटेन करें। 368 में क्लॉज 4 जोड़ा और क्या कहा? क्या कहा? No amendment of this constitution, including the provisions of Part 3 made or purporting to have been made under this article, whether before or after the commencement of Section 55 of Constitution 42nd Amendment Act 1976, shall be called in question in any court on any ground. ओके, इट मीन्स कह दिया कि किसी भी ग्राउंड पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर क्या किया गया है, एक बार प्लीज 368 में देखिएगा, आई थिंक नेहा। तो 368 का ही क्लॉज 4 रीड हाँ किया जी, था हाँ जी, मैंने। हाँ जी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट प्लीज। आई थिंक मैं जो बताना चाहता हूँ थोड़ा सा,
क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट थर्ड made or purporting to have been made under this article, whether before or after the commencement of constitution. Commencement of section 55 of the constitution, 42nd amendment act shall be called in question. साफ मना कर दिया गया कि 42nd amendment के पहले, 42nd amendment से पहले क्या हुआ? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्लॉज 3 के बारे में नहीं आपको पढ़ना था. क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 368. Article 368. Nothing in this Article 13 shall apply to any amendment made under this article. इट मीन्स उधर भी मना कर दिया और इधर भी साफ 24th अमेंडमेंट के साथ मना कर दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 सेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट. अमेंडमेंट के ऊपर कोई भी प्रोविजन 13 अप्लाई नहीं होगा. इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर. तो ये 24th अमेंडमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ और पैर दोनों क्या कर दिए? बांध दिए गए हैं. बांध दिए गए. और अब कहा गया कि प्लीज प्रोनाउंस द जजमेंट, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और डिग्निटी, आर्टिकल 21, 13, 14, ये जो भी है ना, ये सब बकवास है. सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रहा लेकिन इन दोनों प्रोविजंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरटेन when any law is, any amendment is made by the parliament using the constituent power, making the 9th schedule, putting law in the 9th schedule, and Supreme Court is not able to entertain the petition. Is it clear? चलिए वापस आ जाते हैं. शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, LC गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स. I think you all know this series. हाँ जी, गुंजन. यस सर, यस सर. शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, IC गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स. इस सीरीज को आप लोग याद रखिएगा. कम टू द सज्जन सिंह. व्हाट इज हेल्ड इन सज्जन सिंह? कोई बता सकता है? आप लोग इतना बारीक से हमने डिस्कस किया है ना. अगर आप लोग अपना कंटेंट खोल लेना, अगर एक बार गलती से भी अगर आर्टिकल 13 का, तो मुझे लगता है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पता है, बहुत बारीकी से मैंने डिस्कस किया था इसको. नयन, Yes, sir. व्हाट इज हेल्ड इन सज्जन सिंह प्लीज? तो इसमें शंकरी प्रसाद के व्यू को हेल्ड किया गया था, अप्रूव किया गया था. That amendment of the constitution. Please. First case is a Shankari Prasad. Second is Sajjan Singh. Third is a IC Golaknath. And fourth is a Keswanand Bharti. And fifth is a Minerva Mills. तो सबसे पहले हम शंकरी प्रसाद की बात करते हैं. एंड शंकरी प्रसाद में क्या हुआ था? शंकरी प्रसाद 1951 का केस है, पहला केस है अमेंडमेंट से रिलेटेड. तो क्या बात हुई थी, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी. सर, शंकरी प्रसाद ने यही कहा था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं आएंगे. Okay. It means the first amendment, Act 1951, limiting the right to property guaranteed by Article 31 was challenged. Is it clear? क्या challenge हुआ था? Validity of the First Amendment Act 1951, limiting the right to property guaranteed by Article 31 was challenged. And कोर्ट ने क्या कहा इसमें? कोर्ट rejected the contention and limited the scope of Article 13 by ruling that word law would not include within its scope a constitutional amendment. क्या कहा था गुंजन? क्या नहीं इंक्लूड करता है लॉ? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लॉ जो वर्ड है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे. Okay. Now the second case. Now the second case is. Now the second case is. इसी केस में सर हाँ जी. सर, आपने एक और चीज बताई थी कि इसी केस में लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को डिफरेंशिएट किया गया था. यस. इसके साथ ही एक चीज और आई. सेकेंड केस आया एक, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1964 एंड कोर्ट रीइटरेटेड द व्यू ऑफ द शंकरी प्रसाद. तो शंकरी प्रसाद के हिसाब से सज्जन सिंह में क्या हो गया
3-2 ratio refused to accept the argument that fundamental rights were eternal, inviolate and beyond the reach of Article 360. कहा कि the amendment power does not, this law word under Article 13 does not include the amendments. Same thing was reiterated in the Sajjan Singh versus State of Rajasthan 1964. Is that clear? Yes, sir. नाउ तो ये तो बहुत टिपिकल हो गया. कितने साल गुजर गए 1964 से गोलकनाथ का केस आने में, कोई बताएगा? हाँ जी, 13 साल से. कब आया है गोलकनाथ? सॉरी सर, 1967 दूसरा देख रहा था. 1967, 3 साल बाद. 3 साल तो मैं बाद. शंकरी और सज्जन का सर बता दिया सर. तो ये 3 साल गुजर गए एंड सुप्रीम कोर्ट बाय मेजोरिटी ऑफ 6-5. कितने जजेस की मेजोरिटी थी आईसी गोलकनाथ में? 6 to 6 to 5. 5. Okay. Through 6-5 majority in the Golaknath, prospectively overruled the earlier decisions. दोनों ही decisions को इन्होंने क्या किया? क्या किया? Overrule किया. And क्या कहा? That the word law under Article 13, क्या कहा? Includes the constitutional law as well as it includes the word constitutional amendment. And what are the findings in the case in IC Golaknath? क्यों? Article 368 includes only procedure, not power. हाँ जी, क्या कहा था कुंजन? The 368 only gives the procedure for the amendment, not the power. And law made under 368 would be subject to Article 13 clause 2 like any other law. Means judicial review can be taken under Article 13. It comes under the definition of law. And amendment invites only minor modification in the existing provision but does not alter any major provision. क्या कहा है ऐसी गोलकनाथ ने कि अगर लिखा हुआ है कि अमेंड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तोड़ फोड़ के खत्म कर दो. क्यों शुभम? अगर ये लिखा हुआ है टू अमेंड, इट डज नॉट इनवाइज दैट modification in a manner to destroy the constitution. It means only the minor modification, okay, not any major alteration therein. Now the fourth thing, if you want to amend the fundamental right of part 3rd, then constituent assembly should be convened. क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट को देखना पड़ेगा. नहीं साहब, डिबेट को नहीं देखना पड़ेगा. बुलानी पड़ेगी सर. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शैल बी कन्वेन्ड. उसको कन्वीन करना पड़ेगा. अगर अमेंडमेंट करना चाहते हो फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3rd में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्वीन करिए. पार्लियामेंट के बस का बात नहीं है ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करना. इज इट क्लियर नयन? यस सर. नाउ अब गुस्सा तो आएगी ही फिर लेजिस्लेचर को. क्यों? इतना ज़्यादा बोल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और वो भी 11 जजेस बैठ करके. अनुज? यस सर. In 1971, one amendment was introduced. That is the 24th amendment. यस सर. In order to remove the difficulties which is created by the IC Golaknath, all difficulties has been removed. सब कुछ हटा दिया. और क्या क्या जोड़ दिया? Article 13 clause 3, 13 will not apply on amendment. Article 368 clause 3, no, Article 13 will not affect any amendment. So power of judicial review has been ousted in case of amendment. Is it clear? Yes sir. Now it is express provision. Supreme Court cannot take judicial review if it is written in Article 13 itself. When you are following Article 13, that Article 13 is saying this and that, and Article 13 is presently saying that you cannot entertain
judicial, you cannot invoke the power of judicial review over the amendment, because amendment does not includes the law does not includes the amendment. Is it clear? हाँ जी, Yes, sir. नेहा, जी सर। तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया फिर। हाँ जी सर। Amended 13 clause 3, 368 clause 3 and marginal notes of 368 includes the power and procedure. जो बात कही थी आईसी गोलकनाथ ने, सारा अमेंडमेंट करने के बाद सही कर दिया, बोला हम सब सही कर देते हैं, आप जो कह रहे हैं ना कम है, हम करे देते हैं इसको सही, थ्रू 24th amendment. Now the 24th amendment was challenged in the केशवानंद भारती. हाँ जी, सर एक डाउट था। हाँ जी, डाउट था, बताइए। सर ये सर आपने 13 क्लॉज 3 लिखवाया, सर 13 क्लॉज 4 होगा वो ना शायद। हाँ जी साहब, कर लीजिए सही हाँ है, वो बाय मिस्टेक। कर लीजिए, इतना तो कर Yes, सकते sir. हैं। अब इतना कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को कि आप लोग अब करेक्शन कर सकते हैं, क्यों, बिना पूछे भी। हाँ जी नयन, ओके सर। यस सर। तो ये इतना बड़ा जो, यानी कि इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय द आईसी गोलकनाथ, न्यू अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस एंड दैट इज द 24th अमेंडमेंट इन 1971. इट फ्लश द आईसी गोलकनाथ। क्या हुआ, आईसी गोलकनाथ को क्या किया, फ्लश कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं बचा। कितने साल बाद चैलेंज हुआ 24th अमेंडमेंट? 1967 टू 73। कितना टाइम है बताइए प्लीज, कोई बताएगा? नहीं सर, 1971 में आया था सर, 1973 में केशवानंद भारती केस आई है सर। हाँ जी, हाँ जी, 3 साल का। 1971 में क्या आया, 24th अमेंडमेंट आया, एंड चैलेंज कब हुआ? 73 केशवानंद। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से एक रेट पिटीशन गई और चैलेंज किया 24th अमेंडमेंट को। कहा कि देखिए ऐसा है, ये इतना गलत तो मत करिए, क्यों, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रोजी रोटी मत छीनिए हम लोगों की, जज हैं हम लोग, अगर आप ये कर देंगे तो फिर कौन आएगा हमारे पास न्याय वाय लेने। यस, नाउ केशवानंद भारती वाज द स्टेट ऑफ केरला। कोई तरीका नहीं था इनके पास इसको क्या करने का, इसको क्या करने का। केशवानंद भारती के केस में ड्यू टू द लार्ज बेंच ऑफ आईसी गोलकनाथ, वन न्यू बेंच वाज फॉर्म ऑफ 13 जजेस, और 13 जजेस की बेंच आई, तो 13 जजेस की बेंच के पास आईसी गोलकनाथ प्रेसिडेंट था, और आईसी गोलकनाथ के केस में कुछ ऐसा मिला नहीं उनको कि जिस बेस पे कह दिया जाए कि ये 24th अमेंडमेंट क्या है, ये क्या है, ये इनवैलिड है, यस सर। यस ये अल्ट्रा वायरस है, कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा था। लेकिन एक नई थियोरी डेवलप हुई केशवानंद भारती ऑन 24th अप्रैल 1973. One theory was developed by the Supreme Court, that is the basic structure doctrine, and on the ground of basic structure doctrine it was held, it is also known as a fundamental right case, you know all, I think you all know, यस सर। यस सर। it is known as a fundamental right case. इस केस को जानते हैं ना आप लोग, क्यों? जी सर। हाँ जी सर। सॉरी, गोलकनाथ के केस को नहीं कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, केशवानंद भारती को नहीं कहते हैं। केशवानंद भारती के केस को केशवानंद भारती का ही बता रहे हैं हम लोग। केस, ये जो फंडामेंटल राइट किसको कहते हैं? सर केशवानंद भारती को। पक्का श्योर? हाँ सर। यस सर। जी सर। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ, after the propound after the introduction of this theory, basic structure doctrine, Supreme Court invalidated the 24th amendment. Supreme Court ने क्या किया, इनवैलिडेट कर दिया 24th अमेंडमेंट को, और क्या कहा कि इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, एंड
certain basic structures has been enumerated by the separate judgments. क्या किया गया संजीव? जो 13 जजेस थे उन लोगों ने अलग अलग अपने जजमेंट्स, अलग अलग अपने सेपरेट ओपिनियन में दे हैव इनमरेटेड दैट दिस इज अ रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बेसिक। इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो यहाँ पर नहीं कहा गया, लेकिन ये डेमोक्रेसी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें उन्होंने अलग अलग ओपिनियंस में अपनी बताई और इट बिकेम अ पॉपुलर डॉक्ट्रिन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एंड फर्स्ट टाइम propounded in a केशवानंद भारती। अब बात आती है कि कहा गया कि द कोर्ट हेल्ड दैट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ इन द 368। ये तुम्हारे जोड़ने से नहीं होगा। क्यों अनुज? अनुज यस सर। कहा गया कि देखिए ऐसा है, आईसी गोलकनाथ ने कहा था कि यहाँ पर पावर नहीं है और तुमने पावर जोड़ दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ऐसा है, 24th अमेंडमेंट इज इनवैलिड वेदर इट इज रिटन और नॉट, पावर इज इटसेल्फ देयर, पावर है यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इन क्लासिक केस द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी फाउंड इन आर्टिकल 368 इटसेल्फ एंड there is a distinction between the ordinary law and the constitutional law, and any part of the constitution can be amended, not only fundamental right, any part of the constitution can be amended but subject to the basic structure doctrine. And what will be the basic structure? That will be decided by the Supreme Court time to time, and they enumerated certain basic features that these are the basic structure, example supremacy of the constitution, democratic form of government, republican democratic form of government, secular character, separation of power, फेडरल करेक्टर। तो इसके साथ ही अलग अलग जजेस ने ओपिनियन दी कि ये चीज़ें हैं, ये दीज आर द बेसिक फीचर्स एंड दीज फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड। तो 24th अमेंडमेंट तो अल्ट्रा वायरस हो गया। क्यों अनुज? नाउ व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर द अल्ट्रा वायरस ऑफ द 24th अमेंडमेंट? क्या पोजीशन हुई केशवानंद भारती के साथ बाद? पावर तो दिया गया है सर, बट बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो आएगा उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। पावर तो है अभी भी। यस, मींस पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन व्हिच इज प्रोपाउंडेड बाय द केशवानंद भारती केस। ओके, अब बात आती है कि एक और दिक्कत आई कि इंदिरा नेहरू गांधी का केस कब आया था, याद है आप लोगों को? 1975। इंदिरा नेहरू गांधी का केस आया और एक क्लॉज जोड़ी गई 42nd अमेंडमेंट के जरिए 4 और 5 को जोड़ा गया। हाँ जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 42nd अमेंडमेंट के जरिए जो केशवानंद भारती है, केशवानंद भारती में ये कहा गया कि any part of the constitution can be amended and power of judicial review can be invoked if it is inconsistent with the fundamental rights। तो इसको लेकर के एक जो 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया था, याद है आप लोगों को? हाँ जी, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। तो आयर कोहलो के केस में इंदिरा गांधी का इलेक्शन 1975 में हुआ और 1975 में इलेक्शन होने के बाद 42nd अमेंडमेंट आया और 42nd अमेंडमेंट के जरिए 4 और 5 दो क्लग। हाँ गुंजन प्लीज बताइए। सर, ये जो इंदिरा नेहरू गांधी का केस है, इसमें 39th अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। जिसमें
जिसमें 323 clause A में 329 कैपिटल ए, हाँ जी, तो yes 329 कैपिटल ए को क्या किया गया था, इंसर्ट किया गया था। मीन्स क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 329 ए ऑफ द 39th अमेंडमेंट 1975 वाज चैलेंज। यही हुआ था yes सर, और 39। मिनर्वा मिल्स में 368 के क्लॉज 4 और 5 को चैलेंज किया गया था। हाँ जी, तो क्लॉज 4 ऑफ 329 कैपिटल ए, जो कि 329 कैपिटल ए में जो 39th अमेंडमेंट के जरिए जो इंसर्ट किया गया था उसको चैलेंज किया गया, क्योंकि इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन होने के बाद इनको क्या किया गया था, इनके इलेक्शन को क्या कर दिया गया था, हाँ जी, इनवैलिडेट किया गया था। लेकिन ये स्टे लेकर के चली आई थी सुप्रीम कोर्ट से, शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही, यस सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक अमेंडमेंट मूव कर दिया था 329 कैपिटल ए में, जिसके जरिए उन्होंने लिखा था कि क्या है कि किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता है। एंड इन्होंने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को ऑस्ट करने की कोशिश की थी, जो कि 39th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया इंदिरा नेहरू गांधी राजनारायण में 1975 में। इसके साथ ही इस अमेंडमेंट के जरिए एक तो ये था कि विड्रॉ इलेक्शन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम स्कोप ऑफ द अथॉरिटी जुडिशियल प्रोसेस, कि जो इलेक्शन है वो प्राइम मिनिस्टर का हो या चीफ मिनिस्टर का हो या मिनिस्टर, किसी तरीके के इलेक्शन को क्या नहीं किया जा सकता है, ऑर्डिनरी जुडिशियल प्रोसेस, जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उससे इन्होंने बाहर किया। ठीक है, और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट शैल बी वाइड, डिसीजन हाई कोर्ट का वाइड रहेगा। तो ये जो इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, इस कंट्रोवर्सी से क्या हुआ, एक 42nd अमेंडमेंट लाना पड़ा। और कौन सी क्लॉजेस जोड़नी पड़ी इनको, कौन सी क्लॉज जोड़ी गई 42nd अमेंडमेंट से, 4 and चार 5. 4 and 5 4 Five. and 5 एंड 4 and 5 को मिनर्वा मिल्स में जाकर के क्या किया गया, Invalidate. इनवैलिडेट किया गया कि ये जो 4 and 5 है ये बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को क्या कर रहे हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को ऑस्ट कर रहा है। इट इज एक्सक्लूडिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट on the ground of the basic structure propounded in the Keswaran Bharati. These articles are ultra virus because they are excluding, they are क्या कर रहे हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को, सुप्रीम कोर्ट के पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को क्या कर रहे हैं, ऑस्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ऑन द ग्राउंड जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि IR कोहलो में बोला जा चुका था। तो power of judicial review, that is a basic structure of the constitution, and these clauses are violating the basic structure of the constitution, and on the ground of the basic structure doctrine these clauses 4 and 5 of the 42nd amendment was invalidated. Now so what is the present position, अब क्या position है, अगर हम current की position की बात करें, anyone please? हाँ जी सर, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ जी, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द 368, अगर वो स्पेशल मेजॉरिटी से होना है। इफ इट इज इंटेंस प्रोविजन देन थ्रू द स्पेशल मेजॉरिटी फॉर स्टैटिफिकेशन, बट देयर इज वन क्वालिफिकेशन that shall not violate the basic structure of the constitution. Okay, is it clear? जी सर। So it's all about the amendment process of the constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसेस था, और इसको काफ़ी कुछ हद तक हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपके 13 में, आर्टिकल 13 में भी इस पर डिस्कशन हुआ था, क्यों गुंजन? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी, और नाउ इट्स ऑल अबाउट कंप्लीटेड। और कुछ चीज़ें बची हुई हैं, अगर बाई चांस कभी टाइम लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक आध लेक्चर कभी लगेगा कि हाँ कुछ नहीं आपको समझ आ रहा है, बट जो आर्टिकल्स आपने आज लिखे हैं, इन आर्टिकल्स को जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक पे हाईलाइट कर लेना और उनको जाकर के एक बार देख लेना। हाँ जी गुंजन बताइए। सर, आपने जैसा बताया कि हाँ जी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं वो लॉ नहीं होते हैं अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, बट जुडिशियल रिव्यू ऑफ नहीं बेसिक स्ट्रक्चर। गुंजन, ये बात तो कंप्लीट हो चुकी है।
नहीं होते हैं, नहीं होते थे, अब तो हैं। अब क्या है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, ठीक है। और इसलिए नहीं आर्टिकल सॉरी ये बात नहीं डिस्कस की गई। डिस्कस ये हुई कि अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 13 जो कि दिए गए हैं इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। ऑन द ग्राउंड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इट कैन बी चैलेंज। गुंजन, यस सर, क्लियर हो गया। न्यू ग्राउंड एक नया क्रिएट हो गया ना अब तो, और न्यू ग्राउंड क्रिएट होने के बाद लिख दिया गया कि क्या है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर 368 बट इट इज सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इफ इट इज वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देन इट कैन बी इनवैलिडेट। अब तो जरूरत ही नहीं आर्टिकल 13 में किसी चीज को उठाने की। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी। सो इन आई थिंक वी विल स्टार्ट इंडियन पिनल कोड इन द नेक्स्ट क्लास, और मॉर्निंग में हम लिमिटेशन की लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है। आज क्लास नहीं करेंगे, जो लोग लिमिटेशन के यहाँ पर हैं वो लोग प्लीज़ ध्यान दें। और लास्ट क्लास लिमिटेशन की होगी। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम टुमारो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू मस्ट परचेज अ बेयर एक्ट, न्यू बेयर एक्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड। क्या करेंगे, क्या करेंगे? न्यू वेयर एक्ट लेना है। बिल्कुल, न्यू बेयर एक्ट इंडियन पिनल कोड के ले लेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो अब उसका इस्तेमाल करना भी शुरू करिए, ठीक है। आपने सीपीसी पढ़ लिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिया, यहाँ तक कि एसआरए, सेल ऑफ गुड्स, लिमिटेशन, पार्टनरशिप, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। क्यों संजीव? जो लोग रेगुलर ज्वाइन किए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब जो आपके पास सब्जेक्ट बचे हैं वो कुछ मेजर सब्जेक्ट अभी जैसे हैं, जैसे टीपीए, इंडियन पिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ये ख़त्म होने के बाद आप परफेक्टली एकदम तैयार हैं, एकदम एग्ज़ाम पे फोकस करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको जो एमसीक्यू भेज देता हूँ वो एमसीक्यू कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी लिमिटेशन के एमसीक्यू भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मिल जाएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के मैं आपको दे चुका हूँ, कुछ बुक्स मैं आपको बाद में बता दूँगा जिन्हें आपको ख़रीदना है, जिनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यू मे शेयर योर एक्सपीरियंस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मैंने आपको एक एडवर्टीज़मेंट भेजा हुआ है। वो एडवर्टीजमेंट आपको क्यों भेजा हुआ है? इसलिए भेजा हुआ है क्योंकि व्हेन यू विल एडवर्टीज देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप अपने एक पेज पर अपने एक पोस्ट को अगर आप शेयर कर देंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, ठीक है। यू मे शेयर योर एक्सपीरियंस टू मी ऑल्सो एंड अदर्स ऑल्सो, ओके। क्योंकि अब एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए आपने 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, यू नो वेरी वेल। इज इट क्लियर? हाँ जी। Yes sir. Yes, sir. So please just share your experience to your near and dear one also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही पढ़ें। जब मैंने इतना सस्ते में पढ़ाने की कोशिश की है तो आप लोग कम से कम इतना तो करिए। अब आपने तो पढ़ लिया ना अनुज? Yes sir. कम से कम दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी दे दो कि वो भी पढ़ ले, गरीब है अगर कोई बेचारा। तुम लोग गरीब तो हो करते हैं नहीं, सर। तुम लोग तो गरीब हो नहीं, ये तो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी फ़ायदा मिलने दो कि जिनको वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। क्या है? डिसेबिलिटी शुड नॉट बी यूज्ड एज अ एबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं? क्या है? डिसेबिलिटी शुड नॉट बी यूज एज एबिलिटी। अगर आप डिसेबल हैं तो उसका फायदा आप अगर डिसेबल हैं तो लीजिए, अदरवाइज क्या है? अदरवाइज गैस कनेक्शन की तरीके से, गैस सब्सिडी के तरीके से छोड़ दीजिए। क्यों गुंजन? यस सर, नहीं तो गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त कर नहीं देगी। नहीं नहीं, गवर्नमेंट समाप्त नहीं कर देगी। अदरवाइज जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, पता है। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि 4 महीने पढ़ाना इन 500,
आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, बट मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत बुरा लगा या अच्छा लगा. आई एम वेरी हैप्पी टू टीच यू ऑल, एंड आई थिंक इन एवरी क्लास विद सेम इंथुसिज्म आई स्टार्टेड. कभी ऐसा तुम्हें लगा नहीं होगा कि शायद मुझे लगता है कि बिना मन से मैंने पढ़ाया हो. क्यों संजीव? No, sir. Yes, sir. अगर मैं बीमार हूं तो हो सकता है कि आपको कभी लगा होगा कि नहीं नहीं सर का थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, लेकिन नेवर. इन एवरी क्लास विथ सेम इंथुसिज्म, जैसी पहली क्लास थी वैसी ही एवरी क्लास कोशिश की गई कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा पाए. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट था, हृदय परिवर्तन. यू नो वेरी वेल हृदय परिवर्तन, इट्स एक्सपेरिमेंट. Yes, sir. और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, पता है. व्हेन यू विल डू विद योर फुल हार्ट, देन ऑलवेज इट विल गिव यू रिटर्न. ओके, एंड कोशिश करिए कि जो ज्ञान आपने हमसे लिया है इसको किसी न किसी को देते रहिएगा. क्यों अनुज? यस सर. कोशिश करिएगा कि असिस्ट टू अदर्स कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू. इट्स अप टू योर कैपेसिटी कि इन वॉट मैनर यू विल असिस्ट टू द अदर्स. लॉ पढ़ रहे हैं, ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये डॉक्टरी नहीं है, भगवान तो नहीं बन सकते यहाँ पे, लेकिन आप इंसान बन जाएं या बना दें लोगों को, दैट्स इनफ. ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स मीट एट 6 AM. ओके, जो लोग क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अटेंड करिए क्लासेस. थक जाऊँगा जिस दिन, उस दिन बंद कर दूँगा मैं, पता है. सच्चाई है ये. अगर मुझे जिस दिन थकावट महसूस हुई ना, उस दिन फिर मैं वो कोई काम नहीं करूँगा जो मुझे थकावट दे. जैसे आप लोगों का मन करता है तो अटेंड कर लेते हैं, मन करता नहीं करते हैं, फिर सर से रिक्वेस्ट करके आपने लेक्चर्स मिल जाते हैं. तो प्लीज़ कोशिश करिए कि मैं थकूँ ना इसमें. ठीक, काम करने में मैं थकूँ ना. अगर मैं थक जाऊँगा तो फिर नहीं बन पाएगा, फिर मेरा मन ही नहीं करेगा पढ़ाने का फिर. ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स मीट एट 6 AM, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. आप लोग IPC पढ़ेंगे, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ लिया है, इसका इस्तेमाल करिए. ठीक है, और बहुत ही अच्छा Thank you, पढ़ा sir. है, बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा है. आई एम अश्योरिंग टू ऑल ऑफ यू कि जितना आपने लिख लिया ना कागज़ पे, ये ब्रह्मा की लकीर है, इसको एक बार 2 बार या 3 बार रिवाइज कर जाइए, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन छूना नहीं पड़ेगा आपको. ये एकदम वरदान है आपके लिए, पता है. इट्स ब्लेसिंग फ्रॉम मी कि आपको कभी आपको टिक नहीं करना पड़ेगा MCQ. पता है, MCQ एक भी टिक नहीं करना पड़ेगा कि MCQ कर लेते हैं. तुम हमेशा अपने नोट्स पर रिलाई करोगे कि मुझे अपने नोट्स को देखना है एक बार, बस. अगर देख लिया तो हो गया. ओके, ओके सर. सो Thank you so गुड much. नाइट, गुड नाइट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.